तो ये भी हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत ही देखकर अच्छा लग रहा है कि जो हमारे बीच डॉक्टर्स की टीम आई है। वैसे हम कहीं हॉस्पिटल में या कोई जाते हैं तो कोई एक डॉक्टर को हम दिखा पाते हैं या अपनी बात कर पाते हैं या उस एक डॉक्टर की हम राय ले पाते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि हमारे पास फ्लीट ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कि कुछ अपनी तरफ से बोलेंगे और आप सभी को ये मौका दिया जाएगा कि यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप उस शंका का समाधान भी इसी हॉल में आप कर सकते हैं। तो पुनः इस जो परिचर्चा है हमारी महिला स्वास्थ्य की, इस परिचर्चा में शामिल महात्मा गांधी हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम का मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय के सेक्रेटरी श्री विमल कुमार भाटिया सर का। नमस्कार, मेरा नाम वीके कपूर है। मैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट और साथ ही मैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में को वाइस चांसलर हूँ। As I said, that we are a university, which means that we have several colleges. We have a medical college, we have a dental college, we have nursing college, occupational therapy, physiotherapy, hospital administration, and several other, including health informatics and various other health sciences. And as the name says, we are a medical university. Which means कि जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने देखा होगा जिसमें तरह तरह के कोर्सेज होते हैं, हमने इंटेंशनली जो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर एम सरिता, who himself is a doctor, a cardiologist, a specialist in vitro fertilization, क्योंकि एक कॉन्शियस डिसीजन जब यूनिवर्सिटी बनी थी तब लिया गया था कि हम अपने एरिया को रिस्ट्रिक्ट करेंगे मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड स्पेशलिटीज़ में, ताकि हमारा जो एम्फेसिस है वो डाइल्यूट ना हो। तो दैट वे वी आर यूनिक यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर टू many other or most other universities. And also we take pride that we are the first private medical university in the state of Pakistan. As I said, that one of the constituent colleges and the biggest and most important is the medical college and hospital. So we offer MBBS and then the next level which is MD and MS, and even the next level which is BM and MCH courses in various branches of medicine and surgery and other specialties of medicine in general. जो मेडिकल कोर्सेज हैं उनको गवर्न करती है जो बॉडी, जिसको पहले हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, अब उसको गवर्नमेंट ने रीनॉमिनेट किया है नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। NMC की लिस्ट में जितने भी MD, MS, AM, MCH के कोर्सेज हैं वो सब हमारे यहाँ। In that way also we are a unique institution that we offer all these courses which are not offered even in some of the good government medical colleges. And because we are a medical college and hospital, we have a hospital attached to it. So that is where the doctors learn how to practice medicine and how to become a specialist. So we are a tertiary level referral hospital which has 1400 plus beds. For COVID के time में we became the largest hospital in the state offering intensive care facilities to patients with severe COVID infection. And in the next year, which is our silver jubilee year, we are going to add another 1,000 beds so that we will become almost a 2,500 bed hospital. And again, I can say with pride that almost all gadgets, all equipment, all experts, all facilities, all kind of treatment which is possible anywhere in the country for any disease is available at our hospital. As I said, we are a university, so we have so many other colleges. Why I mention those colleges is that some of the students who are here, even if you don't belong to biology stream,
even if you belong to science stream, there is something which we can offer to you, because some of our courses are open to students who are not from biology, who are not even from science. For example, hospital administration. And in fact, the next year we are going to expand that. We will have a faculty of management studies where we are going to offer MBA courses in health and hospital management. And these courses are open to students who are from a non-biology, non-science background also. What is Jaipur Swasthya Charcha? We are all doctors, we treat patients, we are very happy in our institution. So why we started this new initiative? What we realized कि हॉस्पिटल में कौन आता है? हॉस्पिटल में वो आता है जो पेशेंट, जो मरीज है, जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई प्रॉब्लम है. But we all know and we all thought about it कि जो लोग अपने को सोचते हैं कि हम ठीक हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, उनको भी डिजीज के बारे में जानना जरूरी है. क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि जो पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, either because of lack of knowledge or because of lack of attention to one's health or because of lack of ability to come to a hospital for financial or other reasons, being busy with one's own work. ज्यादातर मरीज जब बीमारी बढ़ जाती है या कॉम्प्लिकेट हो जाती है तब आती है. उसमें क्या होता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इलाज करना, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ टेस्ट ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, रिकवरी होने में देर लगती है या नहीं भी हो सकती, या अगर कैंसर जैसी बीमारी है तो उसका आउटकम वो खराब हो जाता है. तो ये बहुत जरूरी है कि हर आदमी को, हर इंसान को, हर ले पर्सन को अपने लिए और अपने परिवार के लिए जानना जरूरी है कि अलग अलग बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, कैसे आपको ये पता चल जाए या एटलीस्ट आपको डाउट हो, आपको ये कंसर्न हो कि मुझे या मेरे परिवार में किसी को ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये बीमारी के हैं, और आप जल्दी डॉक्टर की सलाह ले सकें ताकि जल्दी बीमारी पकड़ में आए, उसका इलाज आसान हो, सस्ता हो, कम समय अस्पताल में रहना पड़े, जल्दी रिकवरी हो जाए, सर्वाइवल अच्छा हो और रिजल्ट अच्छा हो. So that is one purpose that we thought that we should go out of the hospital to the people in colleges, schools, institutions, organizations, और हम उन्हें ये बताएं, ये अपनी नॉलेज उन तक पहुंचाएं कि कैसे आप अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में किसी बीमारी के लक्षण को पकड़कर उनको आगाह कर सकते हैं कि देखो आपको मेडिकल हेल्प देनी चाहिए. नेक्स्ट, अगर हम बिल्कुल ठीक भी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, अभी जैसा अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, नॉट ऑल ऑफ अस आर हेल्दी. Health is not equal to absence of disease. Health is not a negative statement. Health is a positive statement. आपकी हेल्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, और हेल्थ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले ये समझा जाता था कि अगर आप ठीक हैं, चल फिर रहे हैं, खाना नॉर्मल खा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं. ऐसा नहीं है. फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और आजकल सोशल मीडिया हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट. तो क्योंकि ऑडियंस इज ऑल फीमेल, आज हम विमेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे. जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर यंग एंड हेल्दी, बट फिर भी हमारी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सी बातें आपके लिए भी हैं और कुछ बातें आपके घर में जो आपसे बड़ी विमेन हैं, आपकी दादी है, नानी है, आपकी मम्मी है, जो मैरिड हैं, उनकी सास हैं, सास वो सीरियल वाली
चुड़ैल सास नहीं, जो माँ जैसी सास होती है, जो नई माँ होती है, वो वाली सास है, बुआ है, चाची है, आपकी बड़ी बहन है, आपके फ्रेंड्स हैं। तो आप में से कोई भी एक अगर आज हमारी बात सुन के किसी एक को भी अपनी बीमारी या उसकी बीमारी के बारे में आगाह कर देगा, तो मैं समझूंगा कि हमारा यहाँ आने का पर्पस सॉल्व। अब हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं और मैं एक एक करके जो मेरे मैंने बताया था आपको कि मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। आई एम श्योर 99% लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। तो सर्जिकल तो समझ आ गया कि मैं सर्जन हूँ, पीठ का काम करता हूँ, फूल बनाता हूँ अच्छे के लिए। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का मतलब कि जो पेट से संबंधित, पेट, इंटेस्टाइन, लिवर और पेट में जितने ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड बीमारियों का सर्जन है। तो मैं विमेंस हेल्थ के बारे में क्या बताऊँ? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो सवाल आपके मन में होंगे और आप हेजिटेट करेंगे पूछने से, वो मैं आपके बिहाफ पे इन लोगों से पूछूंगा। ये एक्सपर्ट्स हैं विमेन हेल्थ के, मैं तो आप ही की तरह हूँ। मैं आपके बिहाफ पे एक एक करके इनसे सवाल पूछूंगा और ये फिर आपको बताएंगे कि आपको क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर अंशिन कारिया से। अंशिन इज हमारे इंटरनल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो किसी भी हॉस्पिटल का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, उसमें प्रोफेसर हैं। देखने में लेक्चरर जैसी लगती है लेकिन है प्रोफेसर। तो अंशिन ये बताएं कि फिजिकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो जनरली हाइट तो देखिए चेंज नहीं हो सकती, हाइट तो जैसी मिली है वही रहेगी। वेट हाँ हमारे हाथ में है। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताएं, और खासतौर से ये जो आजकल ओवरवेट, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में ओबेसिटी कहते हैं, ये क्या है, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो क्विकली अपने मोबाइल फोन से कैसे ये जान सकते हैं कि वो ओवरवेट है। Good afternoon, everyone. I will directly come to the question. आजकल बहुत कॉमनली ट्रीट करते हैं और ओबेसिटी है, मोटापा फेवरेट टॉपिक है सबका। हमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, ये खाने से हम मोटे हो गए, ये खाने से हम पतले हो गए। ऑल द टाइम जो पहले नहीं सोचते थे, आपको सब लोग फिट देखते हैं, बट जनरली व्हेन आई एम टॉकिंग टू एनीवन इन अ ग्रुप और अ पार्टी, द फेवरेट टॉपिक इज कि मोटापा कम नहीं हो रहा है या ये मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। So this is a very common topic these days. तो नॉर्मल भाषा में ओबेसिटी हम कब बोलते हैं, जब हमारा जो BMI है इट इज मोर देन 23.5। कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी भी अपने फोन पे अपनी हाइट डालेंगे और अपना वेट डालेंगे, उसका एक फॉर्मूला आता है। आप BMI कैलकुलेटर अगर बोलते हैं तो अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो यू कैन ऑल कैलकुलेट योर BMI, हाइट और वेट उसमें जरूरी है। इफ योर more than 23.5 that means you are obese. जैसे पहले हम बात करते थे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, so now obesity is also considered one of the important metabolic diseases. metabolic मतलब chronic disease। और obesity एक ऐसी चीज है जिसके प्रिवेंशन से हम आगे जाकर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमको लगता है हम मोटे हैं, ओवरवेट है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर हम क्यों इसके ऊपर वर्क करें, पर अभी नहीं है और हम हमेशा जवान भी नहीं रहेंगे। तो when you become 20, when you become 30, when you become 40, suddenly when you cross 30 you will realize that हल्का सा भी अगर हम ओवरवेट होते हैं और फिट नहीं होते हैं तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। घुटने जल्दी खराब होंगे, नंबर 1। आपका स्ट्रेस सारा नीज पे रहता है तो नीज वुड बी अ प्रॉब्लम। ओवरवेट से फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर आधे से ज्यादा लोगों को कॉमनली सबने सुना होगा, लिवर पे चर्बी चर्बी, तो दैट इज फैटी लिवर। तो फैटी लिवर सरप्राइजिंगली पहले अल्कोहल से जितना फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस या लिवर खराब होता था, आजकल फैटी लिवर इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस या फेलियर ऑफ लिवर। वो हो जाता है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो खाली वॉक से नहीं होगा, डाइट कम करनी पड़ेगी। और अगर आप कर सकते हैं तो जैसा डॉक्टर अंशिन ने बताया, मॉडरेट या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी होगी। और वो वाला वॉक की पार्क में गए और फिर वहाँ बाद में बैठ के सबने जलेबी और समोसे खाए, उससे ठीक नहीं। कितने बच्चे हैं यहाँ हमारे इस कॉलेज में? मैक्सिमम फ्लोर्स कितने हैं? 3।
देखिए, तो आप लोग हमारे हॉस्पिटल में आइए, वहाँ 8 फ्लोर हैं और सबको मैं बोलूँगा सीढ़ी चढ़ के 8वीं मंजिल तक जाओ, तो आई एम श्योर आप में से आधे से ज़्यादा लोगों का सांस फूल जाएगा। तो डॉक्टर प्रिया हैं पीडियाट्रिशियन को सब जानते हैं, तो वो यहाँ क्यों आए? यहाँ तो बच्चे हैं नहीं, बट पीडियाट्रिशियन होने के साथ साथ डॉक्टर प्रिया एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है, उसकी भी एक्सपर्ट हैं, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जिन बच्चों का बोन में ब्लड नहीं बनता है या जिनकी कैंसर हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ब्लड कैंसर, उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोसीजर, उसके एक्सपर्ट हैं, बट आज उस बारे में नहीं बात करेंगे। डॉक्टर प्रिया हमें बताएंगे कि ये जो सांस फूलना होता है, सीढ़ी चढ़ें या कोई साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें, खासतौर से विमेन में, उसका कॉज क्या है और फिर उसका प्रिवेंशन क्या है, और अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सर। लड़कियों में ज़्यादातर ये सांस फूलना, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो खून की कमी यानी एनीमिया। हम लोगों में अक्सर ये होता है कि रंग साफ हो रहा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम गोरे होते जा रहे हैं, और अक्सर ये कारण होता है कि हमारे में खून की कमी होती जा रही है। तो जो मेरा चेहरा पहले थोड़ा सा सांवला और सफ़ेद की तरफ जा रहा है, मुझे ये नहीं मानना है कि हमें फेयर एंड लवली काम कर रही है, हो सकता है कि मुझमें कहीं ना कहीं खून की भी कमी हो रही है। तो हमें एक नंबर याद रखना है और वो नंबर है 12। तो आप लोग, मैं चाहूँगी कि आप लोग सभी अपना एक CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करवाएं, और उसमें यदि अपना हीमोग्लोबिन 12 से कम आता है तो हमको मान के चलना है कि हम एनीमिक हैं, यानी कि हमें खून में खून की कमी है। खून की कमी न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, लेकिन आगे जाके वो थोड़ा सा हमारा मेंटल वेलबींग, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि पढ़ाई लिखाई की क्षमता, कुछ अच्छा करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसका उपचार बहुत आसान है। यदि 12 से कम आपका आता है तो एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, क्योंकि एनीमिया का कारण सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं, कई और भी कारण होते हैं। तो डॉक्टर आपकी CBC की रिपोर्ट देख के तुरंत बता सकते हैं कि भाई आपको जो एनीमिया का कारण है वो केवल खान पान की कमी से है या किसी और कारण से। और यदि खान पान की कमी से है तो हम लोग उस पर आपको खाने के निर्देश देते हैं और साथ में दवाइयाँ देते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि मेरा हीमोग्लोबिन 9 है और मैं ये सोचूं कि मैं केवल खाने पीने से उसको बढ़ा सकती हूँ, तो यह संभव नहीं है। हो सकता है मैं खाने पीने का ध्यान रख के 9 से कम नहीं होने दूँगी, लेकिन मुझे उस 12 पॉइंट तक लाने के लिए ज़रूरी होगा कि मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी उस समय। और ये कोई हैबिट फॉर्मिंग या आदत डालने वाली दवाई नहीं होती, पर आवश्यक होती है कि हम अपने आयरन स्टोर्स को पूरा करने के लिए ये दवाइयाँ लें। जहाँ तक खाने पीने का बात है, सभी हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हमें पत्तेदार सब्जियाँ, जिसमें रंगीन फल वगैरह, तो सब में जानते हैं कि आयरन काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो सबसे सस्ता सुंदर इलाज होता है वो होता है भुने हुए चने और गुड़। मुट्ठी भर भुने हुए चने और गुड़ यदि आप रोज़ खाते हैं तो आपका आयरन बहुत अच्छा है। यदि हीमोग्लोबिन अपना ठीक है तो हम लोग समाज के भी काम आ सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप में से कितने ऐसे चने जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ब्लड डोनेट किया। अच्छा लगा देख के कि कुछ एक फीमेल्स हैं, और स्पेशली देखिए ब्लड सेंटर वाले आपको बताएंगे कि जब तक लेडीज़ जो है बच्चा पैदा नहीं करें तब तक वो फिट होती है ब्लड देने के लिए। एक बार प्रेगनेंसी के बाद हम लोग यूजुअली एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे में वो जिसको ब्लड दे रही है उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो यदि आप ब्लड डोनर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 से ऊपर होना चाहिए। आप जैसे मुझे देख रहे हैं ना, छोटी और मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, हाइट के हिसाब से मेरा वजन ज़्यादा है, पर वो मैं जानबूझकर रखती हूँ। डॉक्टर अंजिल मुझे ऐसे देख रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि ब्लड बैंक की एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप 50 kg से कम है तो आप ब्लड नहीं दे सकते। और मैं एक SGP डोनर हूँ। SGP डोनर के लिए क्या, उनको बहुत अच्छी वेन्स चाहिए होती है, जो कि भगवान की दया से मेरे हाथों में है।
तो प्लेटलेट की संख्या भी मेरी अच्छी रहती है। तो इस वजह से मैं केवल अपना वज़न थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ और मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो कभी 13 से कम हो। तो खाने पीने की अगर कुछ एक चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो न केवल हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे, बल्कि हमारे 1 यूनिट ब्लड से हम कम से कम 4 जनों को फायदा पहुँचा सकें। एक तो कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब अगले 1 महीने में अपनी अपनी मम्मी का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। अगर कम निकलता है, जैसे प्रिया मैम ने बताया, अगर 10 से कम है तब तो डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 10 से 12 के बीच में अगर मम्मी नहीं भी एग्री करती हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो उनकी डाइट में बढ़ा दीजिए। उनका कराने के बाद फिर अपना भी कराएं। तो प्रिया जी बताएं कि बीच में आपने मेंशन किया कि मान लीजिए मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता हूँ, मैं घर से निकला, गाड़ी में बैठा, ऑफिस गया और आ गया, मैं वॉक नहीं करता, साइकिलिंग नहीं करता, अगर मेरा हीमोग्लोबिन 10 है तो काम चल जाता है, क्यों उसको बढ़ाना? फिलहाल हो सकता है कि आपका काम चल जाए, लेकिन जैसे जैसे अपनी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे बाकी अंगों में स्ट्रेन बढ़ता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी धीरे धीरे जब एनीमिया होता है तो बिहेवियर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, हम ये चीज़ें रियलाइज नहीं करती। और क्यों हमें एनीमिया चाहिए? क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे अंगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, और जब हमारे अंगों में ये ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका हर चीज़ में असर होता है। जब दिमाग में थोड़ी कमी आने लगती है तो छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, जो चीज़ हमें पहले इरिटेट नहीं करती थी वो हमें इरिटेट करने लग जाती है। हम लोगों को लगता था कि हम स्कूल टाइम पे तो टॉपर्स थे, उस टाइम पे हमारा हीमोग्लोबिन थोड़ा ठीक रहता था। फिर जैसे जैसे अब यहाँ पे सब फीमेल्स हैं, फिर अपने को जब माहवारी शुरू होती है, ब्लड लॉस शुरू हो जाता है, तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हमारा ब्लड का लेवल थोड़ा कम होने लगा है। तो ये चीज़ हमारे फिर आगे जाके फिजिकल स्ट्रेंथ को कम करती है, ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और स्पेशली फीमेल्स में यदि हम एनेमिक हैं तो जब माहवारी का टाइम होता है, देखिए ये दोनों चीज़ें कर सकती है, या तो माहवारी को डिले कर देगी और या माहवारी के टाइम पे और ज़्यादा ब्लड लॉस करेगी। एनीमिया कैन इटसेल्फ कॉज, जैसे कि अभी हमारे पास गायनी के एक्सपर्ट हैं, वो और ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, बट दैट टू कैन कॉज मेनोरेजिया, यानी कि हैवी ब्लीडिंग, जो कि एक साइकिल बना लेता है कि आप वैसे ही आप में खून की कमी थी, पीरियड्स आए तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लग गई, उससे और ज़्यादा खून की कमी हो गई। तो ये हमारे अल्टीमेटली फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। इन सब चीज़ों का असर धीरे धीरे हमारे हार्ट पे भी पड़ता है, जैसे कि हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो उन्होंने आपको बताया था। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखें। तो मैंने कहा आपने अपनी मम्मी का सब कराएंगे, आई एम श्योर कोई बच्ची पूछेगी कि पापा का क्यों नहीं कराएं। तो ये बताइए कि 50, 60, 70 की एज में जो मेन हैं, अगर वो एनीमिक हैं, उसका हार्ट की प्रॉब्लम से क्या रिलेशनशिप? थैंक यू सर। मेल्स में यूजुअली हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है, पर अगर मेल्स में हीमोग्लोबिन एट एनी एज कम हो तो उसका टेस्ट डिटेल में होता है एज कम्पेयर टू वेमेन। वेमेन में तो पीरियड्स होते हैं तो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। मेल्स में यूजुअली अगर एनीमिया होता है तो B12 डेफिशिएंसी, विच इज़ वेरी कॉमन हियर इन राजस्थान, वो दूसरा अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उनका स्टूल वगैरह का टेस्ट कराना पड़ता है कि कहीं GI लॉस हो रहा है कि नहीं। ओवर टाइम किसी भी पेशेंट को अनीमिया हो, बी इट अ मेल और बी इट अ फीमेल, हार्ट पे डेफिनेटली, क्योंकि जैसे हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, टैकीकार्डिया रहता है। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली बेचारा हार्ट ऐसे 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 हिलता जा रहा है, तो उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो जब हाइपरट्रॉफी होएगा तो मतलब हाइपरट्रॉफी मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा हार्ट, तो आगे जाकर हमेशा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, इनके रिस्क रहते हैं मेल एंड फीमेल्स दोनों में। बट यस, अगर एनीमिया होता है इन मेल एंड दैट टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया स्पेशली, तो उनका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है टू फाइंड आउट द रीजन कि उनमें क्यों है। फीमेल्स में यूजुअली हम पीरियड्स को ब्लेम करके उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, पर नॉट इन मेल्स। थैंक यू। हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर स्वाति गर्ग। एक साल पहले तक हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल थी, यानी 500 फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग मी, करीब 1200 MBBS स्टूडेंट्स, करीब 200-300 MD MS स्टूडेंट, DNMCS स्टूडेंट, सबको डंडे से मंजूर किया है। तो डॉक्टर स्वाति गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हैं,
मैम चूँकि यहाँ सब विमेन हैं, खासतौर से बच्चियाँ हैं, तो आई एम श्योर दे ऑल नो अबाउट व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल हेल्थ। बट एक प्रॉब्लम जो अभी काफ़ी बच्चों में देखी जा रही है, जिसको हम PCOD या PCOS कहते हैं, एक तो बच्चों को उसके बारे में बताएं कि दूसरा ये भी बताएं कि व्हेन शुड दे स्टार्ट वरीइंग कि उनकी साइकिल नॉर्मल नहीं है एंड दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर टू फाइंड आउट वेदर दे आर ऑलराइट। It's always lovely to be with students, nothing like I'm a very harsh person or something. So I'll start with menstrual hygiene. आप सब लोगों को सफाई के बारे में पता है. Why it is important to be more aware of menstrual hygiene? क्योंकि menstruation के टाइम इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आप लोगों ने सबने देखा होगा या सुना होगा कि immediately after periods there are many signs of infection, vaginal infection like itching, redness and discharge and all these things. क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे एक लड़की बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन के because of presence of blood and secondly because the pH of vagina changes during menstruation. So what is required to be done is keeping yourself dry and clean. Means to wear cotton, dry, loose, breathable clothes, especially the bottoms. Don't wear those tight synthetic leggings or tight jeans during periods, right? Change your pads very frequently and most important, don't use those vaginal washes and douche. Use vaginal wash, just keep yourself dry and clean. That is what is required. Second thing about periods is जो एक लड़की में नॉर्मल है वो ज़रूरी नहीं है दूसरी लोग बिकॉज देयर इज अ रेंज ऑफ लेबलिंग इट एज नॉर्मल. पीरियड्स अगर 21 डेज से 35 डेज तक आ रहा है दैट इज नॉर्मल. द ब्लीडिंग इज फ्रॉम 2 to 7 days दैट इज नॉर्मल. पेन इट इज नॉर्मल इफ इट इज इन द इनिशियल 2 or 3 days. But if it persists for long, that is definitely abnormal and you have to consult for an infection or endometriosis. अगर पीरियड्स के बीच में कभी स्पॉटिंग भी है या कोई पीरियड कुछ दिन के लिए मिस हो करके आया है दैट इज मेनोपॉज के बाद में आपके घर में जो भी एल्डरली लेडीज है उनमें कभी स्पॉटिंग भी हुई है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इवैल्यूएटेड बिकॉज आफ्टर 50 आफ्टर अटेनिंग मेनोपॉज इफ देयर इज स्पॉटिंग देयर इज हाई चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी, राइट? So that is to be evaluated. PCOS जो सर ने बताया उसमें commonly menstrual irregularity हो जाती है. What is PCOS? Incidentally, September is the International PCOS Awareness Month. मतलब पूरा का पूरा month dedicated है PCOS के लिए. Why? Because PCOS का incidence is progressively increasing because of lifestyle changes. So इंसिडेंस अभी ये बताया जाता है 1 से 2 हर 10 रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली फीमेल्स को. मतलब 15 से 45 वाली एज में सपोज अभी यहाँ पे अपन 100 गर्ल्स और लेडीज हैं तो एटलीस्ट 15 to 20 ऑफ अस प्रेजेंट इन दिस सेमिनार रूम हैव PCOS. In most of the cases it is undiagnosed which can precipitate later with complications. और ये कोई डिजीज़ नहीं है, एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जो कि अपन डायग्नोज करते हैं. सपोज किसी को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, ओबेसिटी है, एक्ने है, पिंपल्स जिसे बोलते हैं, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है सेंट्रल पार्ट में लाइक अपर लिप, चिन, चेस्ट, थाइज लाइक दिस. और इनफर्टिलिटी मैरिड लेडीज में प्रेजेंट करती है PCOS से. सोनोग्राफी में किसी के सिस्ट आई है, प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 cysts is not PCOS, but there are certain multicystic ovaries that is PCOS. So everybody of us should know about PCOS. It's not a disease, it's a symptom complex. It is because of certain hormonal and metabolic changes. There is no single test to diagnose it, and treatment is equally complicated. There is no cure for it. Only symptomatic treatment is there. Like अगर किसी को menstrual abnormality है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, infertility है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, acne hirsutism है तो उसका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो जाता है.
the hormonal imbalance can be changed by lifestyle changes, easily said than done. Healthy diet, exercise, अभी बताया आपको डॉक्टर अंशुल ने. कुछ एक doable चीज़ें हैं, अपन packed processed food avoid कर सकते हैं. Please avoid prolonged sitting. Just get up and walk and do something. Right? These are the few changes which can easily do, and 7% of weight loss. 7% मतलब 70 किलो अगर वजन है तो अपन ने 4 से 5 kg भी कम कर लिया, तो भी अपना हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी हद तक रिवर्ट किया है. So all of us should know about PCOS. If you have symptoms, get it diagnosed, because still later on complications of developing type 2 diabetes mellitus later on, cardiovascular diseases, infertility when one gets married, and other problems are quite common with PCOS. तो सब अच्छे ध्यान रखेंगे. अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है, गरीब, अगर आपकी फ्रेंड को, आपकी सिस्टर को, आपकी कज़न को इस तरह के कोई सिम्टम है, गरीब, get a checkup done, because as Ann said that the treatment is in your hand. डाइट, लाइफस्टाइल, एक्टिविटी. तो अगली बार से क्लास में अगर मैम कहती हैं कि जाओ प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से ये कागज़ लेके आओ, तो ये नहीं सोचना वो पनिशमेंट है, वो PCOS का प्रिवेंशन का मैटर है कि आप एक बार लंबे समय तक वहाँ नहीं बैठे. चलिए आगे चलते हैं. तो मेरे साथ हैं गार्गी चौहान. गार्गी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये खतरनाक लोग होते हैं. आप इनके साथ 5 मिनट बैठिए, इनसे बात करिए, आपको पता चल जाएगा आपके मन में और दिमाग में क्या चल रहा है. दे हैव नो टेस्ट, दे हैव नो मेडिसिन, बस ये ऐसे ही डायग्नोसिस भी कर लेते हैं और ट्रीटमेंट भी कर देते हैं. तो दादी बताओ कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि अब हेल्थ की डेफिनेशन खाली फिजिकल हेल्थ नहीं रह गई है. चलिए अंशिल ने जो कहा वो हमने फॉलो कर लिया. BMI अपना 23-24 कर लिया. अगर मैं फीमेल हूँ तो मैंने अपना एनीमिया भी करेक्ट कर लिया. मैंने PCOS के कुछ अगली सिम्टम्स थे वो मैंने करेक्ट कर लिए. बट अंदर क्या क्या घूमता रहता है, और ये बच्चे, इनको कैसे पता चले कि जो इनके मन में घूम रहा है वो नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, और दे शुड गेट वरीड एंड दे शुड आस्क देयर पेरेंट्स कि नहीं नहीं हमें हेल्प की ज़रूरत है. थैंक यू सर. सो जैसा कि हम सभी ने अभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी ली सभी डॉक्टर से. मैं ये कहना चाहती हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा मन खुश होता है तो हम खुद भी खुश रहते हैं और अपने आसपास भी लोगों को खुश रखते हैं. आजकल आप सभी लोगों ने, बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी लोगों ने ये देखा होगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, OCD, कई प्रकार के मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते जा रहे हैं. इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि बच्चों की कंटेक्स्ट में बोला जाए तो एकेडमिक प्रेशर होता है, या फिर डेडलाइंस होती है कि आज ये असाइनमेंट है, कल देना है, बच्चा पहले से नहीं कर पाया किसी वजह से तो अब स्ट्रेस में आ गया एक रात पहले. या फिर कुछ सोसाइटी प्रेशर्स होते हैं कि कोर्स ख़त्म करने के बाद शादी करनी है और अपनी लाइफ आगे करनी है. या फिर कई मल्टीपल रोल्स भी होते हैं, जैसे कि हम जब फैकल्टी मेंबर्स की बात करते हैं तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ऑफिस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए दैट वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज आवर होम. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज इश्यूज आपके डिप्रेशन, एंजाइटी होना काफ़ी कॉमन है. कई बार हम बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को हम उदास देखते हैं तो हमें लगता है, हम एकदम से बोल देते हैं कि नहीं ये तो डिप्रेशन में आ रहा है और कुछ नहीं. बट डिप्रेशन और एक नॉर्मल सैड होने में बहुत बड़ा अंतर है. वो अगर हम समझ जाएं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हमारे आसपास अगर कोई है और उसको डिप्रेशन आ रहा है तो हम उसको सही जगह साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं. सो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. जैसे कि अगर कोई इंसान दुखी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये 3 प्रकार के सिम्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि मन का उदास रहना, पहले जिन कामों में बहुत ज़्यादा मन लगता था अब उन कामों में मन नहीं लगना, और हल्का सा कुछ काम करते ही थकावट महसूस होना.
अगर ये कुछ 3 सिम्टम्स और इसके साथ जैसे कि कई और सिम्टम्स होते हैं, बट ये 3 सिम्टम अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आप किसी भी इंसान में लगातार समय से देख रहे हैं, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसको प्लीज़ और प्लीज़ किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करिए। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें ये तो जान लिया कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो सोसाइटी में डिपेंड कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम मैनेज कैसे करें, हाउ डू वी टैकल इट एट आवर ग्राउंड लेवल। हर बार तो साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा, हर बार साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो जैसे कि जब हम कुछ तरीके हैं, सबसे पहला तरीका होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को हम सभी लोग, बच्चे स्पेशली, हमेशा मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू गिव द स्पीच और सिट फॉर द एग्जाम और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, दिस पॉजिटिव स्ट्रेस ऑल्सो नो। जैसे आज अगर मुझे हल्की भी टेंशन नहीं होती या मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है, तो मैं शायद यहाँ पे आने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं होंगी। Why will I come sit here? I would always be, मैं अपने घर पे ही रहूँगी, बट मेरे अंदर वो थोड़ा सा मोटिवेशन लाना किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज यू स्ट्रेस। जब ये स्ट्रेस एक मात्रा से ज़्यादा हो जाता है किसी भी इंसान में, तब वो यू स्ट्रेस हमारा डिस्ट्रेस में चेंज होता है और हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ रहे हो और आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, उस समय उस काम से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी भी कोई टास्क, बच्चे या बड़े या फैकल्टी कोई भी है, कोई टास्क कर रहे हैं और 1-2 घंटे से आपसे वो नहीं हो पा रहा। हम हमेशा कहते हैं कि उस चीज़ से ब्रेक लो, किसी और चीज़ को करो, फिर वापस उस चीज़ पर आओ। सो टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स within your activity and daily routine is also very important. Other thing is कि जब हम आराम से बैठे और हमें लगता है कि ओवरथिंकिंग कितना कॉमन चीज़ है, एक विचार आए और उसी के बारे में बार बार सोचते जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस विचार, जब वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप आराम से बैठिए, आप अपनी जो ब्रीदिंग है, अपने आसपास कौन कौन है, क्या चीज़ें हैं, अपने आप को ग्राउंड करिए। ग्राउंड करने का मतलब है आपके जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं उसमें लेके आइए। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ माइंडफुलनेस या डीप ब्रीदिंग। ये हम कई लोगों ने आपको बोला होगा करिए, बट हम कई बार इसको बहुत ओवरलुक कर देते हैं। बट जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है, किसी भी टाइप की एंजाइटी में आती है, तो हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उनको वापस एक नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हमारी ब्रीदिंग का कंट्रोल में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अदर थिंग इज़ कि जैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, स्ट्रेस तो बच्चों के पास हुई, जब फैकल्टीज़ की आई वुड वांट टू एड्रेस इशू दैट कई बार हमें लगता है कि हमारे घर में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, आई कांट डू बोथ। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करिए दैट एट दिस गिवन मोमेंट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ माई वर्क मोर इम्पॉर्टेंट और इज़ माई होम मोर इम्पॉर्टेंट। तो उस जब आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, अपने आप को वो लिस्ट को बताएंगे कि ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, then you will be able to manage both your house and your work very efficiently. So these are the common things that are there. And, so it's very important that you understand the difference between normal anxiety, stress, and sadness, as Gandhi said, versus when it is becoming abnormal and when you have to seek opinion, consultation, advice, treatment. But I would say that best is to have a good friend. Friend, literary term में नहीं मैं बोल रहा हूँ. Friend could be your grandparent, could be your parent, could be your teacher, could be your classmate, could be your next seat में जो आपके साथ बैठते हैं, कोई भी हो सकता है. But ये वाले friends नहीं, जिनको बस इस पे हेलो कर दिया और सामने मिले तो बात भी नहीं की, वो नहीं. रियल फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको समझे, जिसको आप अपनी बात कह सकें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट वन, मे बी टू, आइडियली 3 गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. आगे चलते हैं. मेरे साथ हैं डॉक्टर नितिन कुंटेटा. ही इज़ अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर. कैंसर के सर्जन हैं और कैंसर जो है वो इनसे बहुत डरता है क्योंकि ये उसको
पूरा काट पीट के निकाल के फेंक देते हैं और जिनको कैंसर होता है उनको नई लाइफ नया जीवन देते हैं। मैं डॉक्टर जिंदल से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एक अर्बन विमेन में अब हमारे कंट्री में और ग्लोबली भी सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो आप सब यंग हैं, वाई यू शुड नो अबाउट ब्रेस्ट कैंसर? एज आई सेड, आपके घर में भी लोग हैं जो उस एज में हैं और आगे आप उस एज में आएंगे एंड अनफॉर्चुनेटली सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर्स वी आर नाउ मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली सीइंग इवन इन यंग पीपल। सो एवरी वुमेन एंड फॉर दैट मैटर एवरी मैन हैज़ टू नो अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के अपने आप सस्पेक्ट करना, डिटेक्ट करना और उसके स्क्रीनिंग जो एक मोडालिटी है उसके बारे में मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कितने लोगों के परिवार में आपने सुना है आपके आसपास कैंसर है मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या परिवर्तन हो गया वो लास्ट 30 ईयर्स अगर हम कहें? पहले तो इतना कैंसर नहीं होता था, हम बच्चे थे इतना कैंसर नहीं होता था हमारे फैमिली में सुनने को मिल रहा है कुछ तो परिवर्तन हुआ है ओवर द ईयर्स। तो फीमेल्स में डेफिनेटली जो स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है उसका परसेंटेज लास्ट 10 ईयर्स में बहुत तेजी से बढ़ा। जैसा सर कि कैसे सस्पेक्ट करें? आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? अप्रॉक्सीमेटली हार्डली 30। तो एनरेज में 30 लोग जानते हैं कि 30 आउट ऑफ 100 की सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है। और कितने लोग स्क्रीनिंग ब्रेस्ट इवैल्यूएशन कराते हैं अल्ट्रासाउंड में करवाइए? तो आप देखिए तो लोग ही है। तो ये अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट। स्तन के अंदर स्वतः ही स्तन की जांच करना एक विधि होती है। इसमें आप खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, आपको कोई भी ब्रेस्ट डिस्चार्ज आता है ब्रेस्ट तो आपको चिंतित होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है, क्यों ये गांठ बनी है, क्यों ये डिस्चार्ज आ रहा है, एक्जिला में गांठ में क्यों ये गांठ बनी है, इसके लिए आपको समझना है। तो स्वतः जब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं वो जनरली पीरियड्स होने के 5 या 6 दिन बाद में करते हैं। उसकी एक विधि है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप जरूर प्रैक्टिस करें। हर फीमेल को 30 से 35 साल की उम्र के बाद में हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, ताकि मालूम चलेगा कि ब्रेस्ट नॉर्मल क्या फील होगा, उसमें कब कोई गांठ या कोई एब्नॉर्मलिटी डेवलप होती है, तो उसके लिए आपको रिलेवेंट अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो स्तन में यंग एज में जो गांठें होती है 20 या 30 साल की उम्र में, वो सारी कैंसर में 80 से 85% गांठें नॉर्मल होती है, वो हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उसके कारण नहीं। बट इससे आपको मालूम है कि वो पीरियड्स के साथ में बढ़ गई और कम होती गई, वो में से 20 से 30 लेडीज को ही बिनाइन या नॉन कैंसर गांठें बनती है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप खुद अपने घर पे मंथली जरूर करें। 40 साल के बाद में, 40 से 45 साल के बाद में, जहाँ किसी के फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, परिवार में किसी को कैंसर नहीं है, 2-3 साल में एक बार एक टेस्ट होता है, वो होता है मैमोग्राफी। वो किया जा सकता है 2-3 साल में एक बार ही करें, नहीं होती अभी 3 to 4 ईयर्स 40 साल की उम्र के बाद। लेकिन जिनके घर में अगर कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर किसी को परिवार को हो गया, या यूट्रस का कैंसर हो गया, या आँख का कैंसर हो गया, पेनक्रियास का कैंसर हो गया, अगर ये साथ में प्रोस्टेट का कैंसर फैमिली में चल रहा है, तो आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर है, उन लेडीज, उन बच्चों को जो टेस्ट कराते हैं वो यंगर एज पे कराना चाहिए। तो ये बेसिक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और 40 साल के बाद में नॉर्मल फैमिली 40 से 45 साल के बाद में मैमोग्राफी का टेस्ट तो सब जगह अवेलेबल है, तो 250-300 रुपये में आपके आसपास में 400 रुपये मैक्सिमम हो जाएगा। तो 3-4 साल में एक बार जरूर कराएं। क्लिनिकल अपने फिजिशियन या गायनिक एक्सपर्ट के जाके एक बार साल या 2 साल में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे भी करा लें, ताकि कोई भी गांठ महसूस होती है उसका जल्दी से जल्दी टेस्ट हो जाए और कंफर्म हो जाए कि ये कैंसर नहीं होगा। ये अपनी आइडिया। थैंक यू।
साथ हैं विधि गुप्ता, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन आवर फिजियोथेरेपी कॉलेज। और पर्सनल नोट जो मेरी कमर भी सीधी रखती है, तो इसी के कहने पे मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने यहाँ बैठने के लिए कह दिया क्योंकि इसने मुझे बताया हुआ है कि आपको ज़्यादा देर खड़े रहना चाहिए स्पाइन की हेल्थ के लिए। तो बहुत से बच्चों में और बहुत सी विमेन में ये मिसकंसेप्शन होता है। अभी हमने एक्टिविटी और एक्सरसाइज की बात की कि नहीं मेरे तो पीरियड्स चल रहे हैं, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, या अभी मेरी डिलीवरी हुई है। तो मुझे बताओ कि जो भी नॉर्मल एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, डज इट हैव टू बी चेंज ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी, और अगर चेंज करना है तो कितना और क्या? Thank you so much, sir. So, among young girls हैं बहुत ज़्यादा, and periods में पेन होना यूजुअली बहुत कॉमन है, सब लोग इससे सफ़र करते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम ज़्यादातर बेड पे लेटे रहते हैं कि नहीं कुछ काम नहीं करना, हो सके तो आज कॉलेज की छुट्टी भी मार लेते हैं कि नहीं जाएंगे कॉलेज, है ना, दैट हैपन्स विद अस। बट इट इज़ सेड कि अगर ड्यूरिंग पीरियड्स जब आपको क्रैम्पिंग पेन आ रहा हो, अगर उस टाइम पे आप 20 मिनट्स का वॉक करते हैं तो वो मूवमेंट जो है उस पीरियड के क्रैम्प या उस पेन को कम कर देगा। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आप उस टाइम पे वॉक करें तो इनफैक्ट आपका पीरियड्स में बहुत जो पेन है बहुत कम हो जाए। सेकेंडली, आप उस टाइम पे हॉट पैक यूज कर सकते हैं। और 20 मिनट अगेन हॉट पैक अगर हमने गर्म पानी का सेक करा तो भी आपके 2-3 आवर्स का वो जो क्रैम्पिंग वाला पेन है वो अगेन कम हो जाता है। एंड इट इज नॉट कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, डेली एक्सरसाइजेस करते हैं एंड दे आर इनटू फिटनेस, वो ये सोचते हैं कि जो जिम भी जा रहे हैं वो दे थिंक दैट कि हम उन 5 डेज में वी वोंट गो टू जिम, या हम वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या हम घर पे वर्कआउट नहीं करेंगे, है ना। दे काइंड ऑफ कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम एक्सरसाइज, पर ऐसा नहीं है। उस टाइम पीरियड पे आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको फील होता है कि हाँ इतना मैं कर सकती हूँ। एंड सम स्ट्रेचेस, कुछ पेल्विक के लिए जो स्ट्रेचेस होते हैं वो तो और फायदेमंद होते हैं उस पीरियड्स के पेन और उस क्रैम्प को कम करने के लिए। तो अगर हम वो चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं उन 5 दिनों के दौरान भी, उन 5-7 दिनों के दौरान भी मॉडरेट इंटेंसिटी जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जैसे सर ने पूछा प्रेगनेंसी। नाउ पहले ना ये बोला जाता था, कुछ लोग अभी भी पुराने जो लोग हैं वो ये कई बार बोल देते हैं कि बच्चे क्या है, बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं, हमारे भी हो गए तो तुम्हारे भी हो जाएंगे। बट नाउ डेज इट इज इम्पॉर्टेंट, हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है ना वो पहले की लाइफस्टाइल से बहुत बदल चुकी है। वी आर मोर इनटू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारी जॉब प्रोफाइल भी ऐसी हो जाती है कि हम बैठे बैठे ज़्यादा काम कर रहे हैं या एक ही पोजिशन में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन बिफोर कंसीविंग ऑल्सो, जैसे आजकल प्लान करके कंसीव किया जाता है, तो उस टाइम पे भी हम हमारी एब्डोमेन यानी कोर यानी हमारा जो पेट की मांसपेशियां है ना उनकी ताकत बढ़ाते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो वी डू सम एक्सरसाइजेस जो कि हमारे पेट के लिए होती हैं, कुछ हमारे पेल्विक रीजन के लिए होती हैं, सो दैट हमारा जो पेट में ताकत बनी रहे। एंड लेटर ऑन आफ्टर जो प्रेगनेंट डिलीवरी हो जाती है उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हम उनसे बच सकते हैं अगर हम शुरुआत में ही कंसीव करने से पहले भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, तीनों ट्राइमेस्टर में भी। तो हमारे डिलीवरी के बाद के जो कॉम्प्लिकेशन है, जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है वो है कमर का दर्द। आधी से ज्यादा फीमेल्स उस कमर के दर्द से परेशान होती ही हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। वो हम सेव कर सकते हैं, वो हम बचा सकते हैं अगर हम लोग हमारी पेट की मांसपेशियों की ताकत पे काम करें। और साथ के साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हमारे अपर लिम्ब मतलब हमारे हाथों की मांसपेशियां जो है उसकी ताकत की हम तैयारी करें, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बच्चे को कैरी करना, ब्रेस्ट फीड कराना, उसमें ऊपर की मतलब हाथों की जो मांसपेशियां उनकी बहुत ताकत लगती है, जिसके कारण बाद में चल के कभी कभार कुछ महिलाओं को हाथों में झंझनाहट भी महसूस होने लगती है या हाथों में दर्द आने लगता है, अकड़न आने लगती है। तो इन सबको अगर अपन लोग रेगुलर हैबिट में लेकर आए तो प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी निकलेगी एंड उसके बाद की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो भी हमारी बहुत हेल्दी निकलेगी। थैंक यू सो मच। टाइम डजंट अलाउ, बट एक टॉपिक और जिसके बारे में मैं बहुत ब्रीफली मेंशन करूंगा। मैंने कहा कि अर्बन विमेन में कॉमनेस्ट कैंसर इंडिया में अब ब्रेस्ट हो गया है, लेकिन ओवरऑल विमेन में और स्पेशली रूरल या सेमी अर्बन विमेन में कैंसर ऑफ द सर्विक्स
सर्विक्स इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो बच्चेदानी होती है उसका सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। उसका जो कैंसर है वो कॉमनेस्ट कैंसर है। फॉर्चुनेटली ये कैंसर अदरवाइज तो नॉन प्रिवेंटेबल डिजीज है। फॉर्चुनेटली फॉर कैंसर सर्विक्स देयर इज अ वैक्सीन, क्योंकि कैंसर सर्विक्स का एक वायरस जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं HPV, उससे रिलेशनशिप है और उसकी वैक्सीन जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी वो अवेलेबल है। तो सारी बच्चियां जो यहाँ बैठी हैं और तो आपकी एज निकल गई है, आइडियल एज फॉर वैक्सीनेशन इज 9 to 15 ईयर्स, बट इवन बियॉन्ड दैट, स्पेशली अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तो इस वैक्सीन का मोस्ट इफेक्टिव स्टेज वो है। इवन आफ्टर मैरिज, इवन आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ली जा सकती है, बट उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, सब अपने पेरेंट्स से और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर आपने नहीं ली है तो HPV वैक्सीन विच इज़ वेरी इफेक्टिव, इट प्रिवेंट्स कैंसर ऑफ द सर्विक्स इन फ्यूचर इन ऑलमोस्ट 80 to 90% of cases. Since time doesn't allow, I cannot go into more details, but keep that in mind and maybe you can use this